Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, chapter 2nd, From Trade to Territory. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 11 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन्स ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। The first English factory was set up on the banks of the river Hugli in 1651. तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। This was the base from which the company's traders, known at that times as factors, operated. इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officers into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata, as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. तो 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जिम्मेदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate exciting privileges. Aurangzeb's farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trades on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Qila Khan, not protest? तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया।
इससे बंगाल में राजस्व वसूलो बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। अब इसके बाद आप पेज नंबर 12 निकालेंगे। आज वहाँ से पढ़ेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। तो व्यापार में युद्धों तक। Through the early 18th century, the conflicts between the company and the Nawabs of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their powers and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Qila Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirojudaulah as the Nawab of बंगाल। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। Each one of them was a strong ruler. ये सभी शक्तिशाली शासक थे। They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. Accusing the company to deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawabs and his officials. तो उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इस लेसन को जो मैंने पढ़ाया है पेज नंबर 11 और 12 को दोबारा से पढ़ेंगे और इसकी 2 बार रीडिंग करेंगे। यह आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।